Hi everyone. So let's get started. I hope you're all able to hear me. आप मुझे सुन सकते हैं. I'll start with the introduction. I'm Ajay Nagar. I'm the Vice President for IT and Junior Division at Resonance. So I'm also an IIT and I passed out from IIT Roorkee in the year 2001, way back. And then we have our stars for today, Samarth and Aryan. I would request Samarth and Aryan, I'll just give them more access. And I will request them to also start their webcams if possible. Oh, so here we have Samarth. Samarth, if you can speak something. Hi guys, I'm Samarth here. And Aryan, you also can open your webcam and yeah, here you are. Wait, let me yeah, just it would be better if you can just put some shade. तो आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं and everybody is working towards a goal or motivated हैं. These are tough times for everybody, entire mankind. So here we have Aryan also. So अगर मैं लाइव होता तो मैं बोलता आर्यन और समर्थ के लिए क्लैप्स. These are, you know, we are really hosting them, so claps for them. And so what we will do is we were thinking, you know, many participants have joined and let's not keep them waiting. और questions क्योंकि बहुत सारे हैं, so Samarth and Aryan we'll play alternate games. Yes, sure, sir. And we will go alternate and I'm pretty sure both of them are pretty apt. बहुत आसानी से ये लोग बता पाएंगे क्योंकि they have lived this journey. So I always say this is a journey. So I've given my introduction. I would you know, hand it over to in a reverse alphabetical order to Samarth. Samarth, if you can introduce yourself and share something about your journey, and then you know, we'll take it forward. So like I belong from Rourkela, Odisha, and I started my journey for JEE in class 11. I joined Resonance Quota Center, and like before joining Resonance, I cleared NTSC stage 1, and after joining Resonance, I cleared stage 2 too. Academic wise, I have cleared NTSC, KVPY stage 1, stage 2, and yeah, I have appeared for IMPHO, qualified NSCP, NSCC, and achieved AIR 207 in JEE Mains and 25 in JEE Advanced. So that's it. And currently, I am pursuing BTech in Electrical Engineering from IIT Bombay. Sir, I think you are mute. Yeah, I was mute. So that's great, Samarth. Thank you for the introduction. That's really great. And Samarth is being really humble. खेलना वेलना पसंद कितना है और यार लोगों को डरा मत ऐसे. This will not be good. नहीं like देखो पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है पर ऐसा नहीं है कि एकदम पढ़ते रहना है ना. Like before going to कोटा मैं यहाँ पे डेली खेलता था ऑलमोस्ट. फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना, एंजॉय द मोमेंट. ये मोमेंट वापस नहीं आएगा. टिल 12 द लाइफ इज वेरी चिल. आफ्टर दैट यू डोंट नो व्हाट इज इन द स्टोर. सो एकदम ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि अभी एकदम अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाद में रिलैक्स रहेगा. लाइफ ऐसे ही भागता रहेगा, कंपटीशन आते रहेंगे. कॉलेज में जाओ वहां पे भी कंपटीशन है, कॉलेज के बाद जॉब में जाओ वहां पे भी कंपटीशन है. सो लिव दिस मोमेंट एंड एकदम एंजॉय करो. Nicely Don't said. take the pressure. Nicely said, Samarth. Let's go to Aryan. Aryan, your introduction, and then we will come back and you know, we'll start the questions because this is predominantly a talk show. So Aryan, over to you. Hi, so I'm from Pune. I was in Aryan, can you be a little louder? थोड़ा सा तेज बोलेगा. Hi everyone, I'm from Pune and I joined Resonance when I was in class 9 and I stayed in Kota for 4 years and I had AIR 129 in JEE Mains and AIR 30 in JEE Advanced. And currently I'm pursuing
computer science at IIT Bombay. And you can share how many schools you have been part of, which I know because yeah, actually I've moved a lot throughout my life, so I think I've been part of how many? Let's say 6 or 7 schools. Yeah, Great. he's quite famous for that, for changing schools. नहीं उसकी कोई गलती नहीं थी. That's also true because you know it was a transferable job and Yeah, I different understand. countries and different states. But yeah, it's very unique कि 12 साल के school की journey में somebody has changed like 7 places and things are like that. I think he has Great. also gone to US now. Yeah, yeah. Even in the 4 years I was in the US, I changed 3 schools. Okay, that you are actually in the US. So great. Let's start with the questions actually what we have, and I'll mention the name also who asked the question because this is how we actually really took some leverage in really asking. So Mr. Bhavesh Kukreja, he asked, and this question is directed to you both, but we'll go in the alphabetical order now. So this question will be answered by Aryan, possibly. So Aryan, so Bhavesh wanted to ask, if we have left any online lecture due to some circumstances, then should we cover them first or should we go ahead with ongoing topic and later complete the previous one? It depends on how much you have left. I mean, like let's say you have modern physics left, right? So that is like an independent chapter, and no chapter really depends on it. So you can leave that for the last. But let's say you have center of mass or work power energy left, but you need those for RBD. So I would recommend that you do those first. Like I'm just using examples from physics, but you can try and see. Okay. Okay. All 3 subjects. So what I'll do is I will ask one question from each individual, and based on how much time is left, I will come back. So people have asked multiple questions also. So I've taken the best question from what they have requested. So what I'll do is I'll really go through all the feedback that we have got. So questions from each and everyone, and then I'll come back to their other questions. I hope that's okay, right? So that way, we will be able to cover everybody. और ऐसा किसी को नहीं लगेगा कि we have left out anyone. So that will be good. So the next question, again, as I said, it's now it's Samad's turn. It's a very standard question, I would say, and हर बच्चा जो भी prepare करता है IIT JEE के लिए, he or she really asks those questions. So Rohit Lamror, I hope I'm speaking your name and surname correctly. Rohit Lamror has asked how to improve accuracy and speed. Okay, so accuracy, you need accuracy and speed both during papers, and accuracy can be improved, and both of these can be improved only by practice. You have to practice a lot and keep in mind your mistake. Our sir used to tell us that whatever mistake you make, you just make a note of it and go through your mistakes so that you remember that you did that and you won't repeat it again. And I would recommend that you go after mistakes after each test and see the solutions and improve that. Can you Aryan, if also? you can add something. Yeah, Aryan, if you want to add something, please feel free. Yeah, I mean, like, this is, I mean, the best method is to like make a notebook of mistakes, right? But I mean, but there that is would be more to improve your accuracy, right? And for speed, I would suggest like what really matters is trying to leave out the difficult questions in the test. Like if there's a JEE paper, not all questions are going to be easy. Like at least 10% of the questions are going to be like you have to leave them right away. So like I would suggest get a lot of practice on what to leave in the paper, like in addition to what to attempt. a very You nice should point. just go after question and you can judge that whether you can do that question or not. And you have to attempt maximum number of questions and not spend much time in a particular question.
Very nice point, Aryan and Samad, that not all questions are for you. So you need to take a decision as to whether you should take the question. Question solve करना है या नहीं करना है वो बहुत आसानी से हो जाएगा, but सबसे पहले शुरू तो करो. That's what Samad said, and Aryan was like, कुछ questions सही में इसीलिए बनाए गए होते हैं कि आप उसे ना करें, तो उसमें टाइम खत्म ना करें, बिकॉज बाकी क्वेश्चंस आप नहीं कर पाएंगे, या ऐसा होगा कि वापस जाके लगेगा अरे यार ये इजी सा क्वेश्चन देखा ही नहीं मैंने. So I think so that's a very nice answer. Thank you, Samarth and Aryan, for that. So now we have another individual, Mr. Harshit Kumar. So his question is very another generic question, जो कि बहुत ही बिल्कुल basic सा question है. Is it necessary to solve all questions of sheet during revision? I think so that's a multi-phase question. Is it necessary to solve all questions of sheet? एक तो ये हुआ, और is it necessary to solve all questions during revision? So I think so दोनों questions अपने आप में valid हैं. So I think so that's the question. So while you are revising or practicing something, do you think you have to solve all the questions of the sheet? And revision के time पे भी क्या वापस से यही करना है? Well, like when you're practicing and revising, I would suggest you should solve all the questions if possible. But I wouldn't suggest doing that for revision, as it would take too much of your time. Right. For revision, what you can do is, like, if you find a good question or something that you make a mistake in, like, just make a star next to it, or like, just like mark the question in your sheet, and do those questions which you felt were good when you were actually solving the questions. I mean, that's what I used to do. I think revision would be too long if you solved the whole sheet again. I mean, you're just supposed to solve ideally around 15 or maximum 20% of the sheet. Okay. In revision. Okay. Okay. So let's take the next question from the viewership that we have. So we have two people who have raised their hands, Vedant and Priyanshu. So I'll just ask Vedant to ask his question. Vedant, I hope you're there. I'm asking you to unmute. Vedant, you can ask your question. Hello. हाँ Yeah, sir. Hello sir. हाँ पूछो. Can I talk in Hindi? Yeah, बिल्कुल. Absolutely. बिल्कुल. सर मैं सिर्फ रेजोनेंस का लेवल 2 और 40 ईयर सॉल्व कर रहा हूँ. 13 का स्टूडेंट हूँ सर. तो इज इट गुड फॉर जेईई एडवांस्ड? वेदांत, वापस से क्वेश्चन पूछना. तुम्हारी गायब हो गई थोड़ी सी. क्वेश्चन पूछना वापस एक बार. सर मैं 40 इयर्स जो आती है बुक वो पूरी सॉल्व कर रहा हूँ, और लेवल 2 ऑफ रेजोनेंस फॉर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू. ओके. इज मतलब इनफ फॉर जेईई एडवांस? समर्थ, लाइक रेजोनेंस का शीट्स में 3 एक्सरसाइजेस में डिवाइड होते हैं ना. सो आप एक्सरसाइज 1 के फर्स्ट लेवल छोड़ सकते हो. एक्सरसाइज 2 का फर्स्ट लेवल जरूर करना, क्योंकि वो भी उसमें भी क्वेश्चंस अच्छे रहते हैं. एंड 40 इयर्स तक जाने का शायद जरूरत ना पड़े. इससे अच्छा आप एक्सरसाइज 3 कर लो, उसमें सेलेक्टेड रहता है. एंड अब और भी रेफरेंस बुक सॉल्व कर लो, लाइक जीएमपी, एआईटीएस, ये सब आप सॉल्व कर लो. दूसरे इंस्टीट्यूट्स के रेप्यूटेड बुक्स सॉल्व कर लो. रेजोनेंस का भी शायद रैंक बूस्टर आता है, वो सब सॉल्व कर लो. 40 इयर्स तक मत जाओ मेरे हिसाब से. लाइक वी नेवर डिड टिल 40 इयर्स. मैक्सिमम हम लोग 15-20 इयर्स तक का किए होंगे. सही बात है. इफ मेरे साल का पेपर लोगे, जो कि 2 बार हुआ था 97 में, व्हेन आई गॉट सिलेक्टेड इन आईआईटी, तो आपको क्वेश्चंस दिखेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते तो फिर आपको लगेगा हे भगवान ये क्वेश्चंस हैं, मजाक है. बट या आई थिंक सो दैट्स अ वेरी फेयर कॉल. समर, थैंक यू. Vedant, I hope your question is answered correctly. I'm just gonna come back to the sheet, and then बहुत लोगों ने हाथ रेज करने शुरू कर दिए हैं. I can see that. Really glad. So what we'll do is 2 questions from here, then we'll go to raise hands in the order. Okay. So we have Mr. Aryan Berlia, and he is asking, how should we attempt the homework? Okay. And there are multiple questions, but I thought, how should we attempt the homework? Okay.
That's Arun. Arun, if you can really shed some light on this. I think the best way to attempt homework would be like if you're given like if you, let's say you're taught ionic equilibrium, right, and then you try and let's say the teacher gave you exercise 2 as homework. So first, rather than going directly to the homework, I would suggest that you try and revise all of ionic equilibrium first and then do the homework. So what happens is those concepts really sink in and then you try and do the homework. Right. आर्यन, इसको तेरे को हिंदी में भी बताना पड़ेगा क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हिंदी में भी समझा। ये वाला पॉइंट ना बहुत क्रूशियल है समझना और बताना सभी लोगों के लिए जो ज्वाइन किए हैं कि व्हाट यू सेड, सो आई लेट यू नो, स्पीक इन हिंदी आल्सो। जब होमवर्क कर रहे होते हैं तो लेट्स से कि आयनिक इक्विलिब्रियम की एक्सरसाइज 2 दी है टीचर ने होमवर्क में। ओके, सो रादर देन मतलब कि आप डायरेक्टली एक्सरसाइज 2 करने लग जाओ, आप पहले नोट्स पढ़ लो आप अपने एक बार, और एक बार सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लो। तो उससे क्या होगा कि आपको चीजें मतलब याद रहेंगी। एक्चुअली क्या होता है कि अगर आप बिना रिवाइज करे हुए डायरेक्टली क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो, सो यू काइंड आई मीन तो थोड़ा ओवरवेलमिंग फील आती है, राइट। तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट सिंक इन नहीं होता है। सो अगर ये करते हैं तो मतलब आई ऑलवेज फाउंड इट बेनिफिशियल। ओके, वेरी नाइसली सजेस्टेड आर्यन। एंड बिकॉज नाम सेम था आर्यन, मिस्टर आर्यन बेरेलिया ने पूछा था तो मैंने कहा आर्यन आंसर करें, सो वो क्वेश्चन हो गया। सो देयर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर चंदन कुमार, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स ओलंपियाड एंड नेसेसरी बुक्स फॉर देयर स्टेजेस। Not sure if any of you both appeared for physics Olympiad. We both appeared, but Aryan prepared very nicely. Aryan अच्छे से बता पाएगा। Aryan, ये क्वेश्चन तेरे जॉनर में जा रहा है। हाँ सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो क्या वापस? क्वेश्चन है फिजिक्स ओलंपियाड में नेसेसरी बुक्स, हाउ टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स ओलंपियाड एंड नेसेसरी बुक्स फॉर देयर स्टेजेस। राइट, सो फर्स्ट स्टेज होता है एनएससीपी। तो एनएससीपी में तो मतलब मोर और लेस जेई मेंस का ही सिलेबस होता है, राइट। एंड उसमें एनएससीपी में वेटेड सेमीकंडक्टर करके एक चैप्टर होता है, आई डोंट नो इफ कि आपको अभी तक पढ़ा है, उसका काफी ज्यादा वेटेज होता है, राइट। सो और मतलब मेन चीज प्रैक्टिस होती है और टाइम इज द मेन इशू। लाइक अगर एक हार्ड क्वेश्चन है तो छोड़ दो। आई मीन तो जो भी जेई मेंस के लिए कर रहे थे वो एनएससीपी के लिए कर सकता है। एंड देन कम्स द नेक्स्ट स्टेज आईएनपीएचओ। सो इसमें क्वेश्चंस काफी हार्ड होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव होते हैं एंड लाइक थोड़े जेई एडवांस से हार्ड होता है, राइट। सो इसके लिए आई वुड सजेस्ट डूइंग इरोडोव, राइट। एंड पास्ट ईयर पेपर्स करना इज द मोस्ट। सो पास्ट ईयर पेपर्स एंड इरोडोव फॉर द सेकंड स्टेज। एंड आई मीन आप थर्ड स्टेज पे जाते हो तो वहां पे आपको रिलेटिविटी पढ़नी पड़ती है, और मतलब तब अपने आप ही थोड़ा पता लग जाता है कि क्या है, एक्सपेरिमेंट्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। बट फर्स्ट 2 स्टेजेस व्हिच विल अप्लाई फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, उसके लिए तो मैंने यही किया था। ऑल्दो आई कुडंट क्लियर आईएनपीएचओ बट आई गॉट 39.5 39.5 in 11th and 37 in 12th. So thanks, Aryan. Aryan, just to mention, when you said Purane papers of Physics Olympiad, not JEE papers, right? Yes, Purane papers of INPHO. Okay. So I hope Chandan, Mr. Chandan ka yes, question. Past year papers are a must. Like पिछले 15 साल से कर लो, है ना? Okay. Definitely बहुत हेल्प होगी। इनफैक्ट इसकी जेई में भी मुझे इस साल मतलब जितना टफ फिजिक्स पेपर आया था उससे हेल्प हुई थी, फिजिक्स ओलंपियाड की तैयारी करने से। Okay. So the next question, मेरे हिसाब से, we are again going to the viewership. Priyanshu, I'm unmuting you, asking to unmute you. You can ask your question if you're there. Priyanshu. Yes, sir. Hello, sir. Hi. Good afternoon, sir. Good afternoon to you. Sir, my question is also related to books. Sir, I want to ask that JEE Mains and Advanced के लिए preparation के लिए NCERT की books तो sir must है physics, chemistry and maths के लिए, लेकिन जो other books हैं वो हम कौन सी prefer कर सकते हैं?
Okay. लाइक जेई मेंस के लिए एनसीईआरटी मस्ट है, एंड जेई एडवांस के लिए तुम्हारा शीट बहुत अच्छा है, और शीट के साथ अगर तुमको कॉन्सेप्चुअल डाउट्स है तो जैसे फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा हम लोग कर सकते हैं, और अगर प्रॉब्लम्स भी समझ नहीं आ रहे, प्रॉब्लम्स तुमसे सॉल्व नहीं होते, यू वांट सॉल्यूशंस, सो सेंगेज का बीएम शर्मा आता है, उसमें काफी एग्जांपल्स रहते हैं, सो यू कैन ट्राई दैट. And if your concepts are clear, DC Pandey is also a good book. And if your concepts are clear, you want to do hard problems, तो आप AITS के पेपर सॉल्व कर लो, GMP कर लो, ये सब कर लो. सिमिलरली फॉर मैथ्स के लिए भी ये सब जो अरिहंत के बुक्स आती हैं, ये सब में एग्जाम्पल्स काफी हैं. अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है तो वो कर लो, और अगर हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो ब्लैक बुक आता है विकास गुप्ता का, वो कर सकते हो. एंड केमिस्ट्री के लिए हम लोग को तो इंस्टीट्यूट काफी मटेरियल दे देता था, डीपीपीज ये सब, तो उसी से हो जाता था. तो केमिस्ट्री के लिए हम लोग ज़्यादा फॉलो नहीं किए, मतलब आई डोंट रिमेम्बर दैट. आर्यन केमिस्ट्री के लिए तुम रेफर कर दो अगर कुछ. मैंने एलजीवेट करी थी, बट एक्चुअली मैं इतना सजेस्ट नहीं करूंगा वो करना. आई मीन हाँ, मतलब नोट्स काफी है, एलजीवेट थ्योरेटिकल बुक, केमिस्ट्री के लिए. हाँ, वो अगर टाइम काफी है तो एलजीवेट पढ़ सकते हो, पर नोट्स काफी होते हैं. एंड मैथ्स के लिए सर आपने कौन सी सजेस्ट की थी? मैथ्स के लिए अगर कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है, प्रैक्टिस करना है, तुम नहीं कर पाते उतना शीट ये सब, तो ये स्टेंगेज के बुक्स आते हैं मैथ्स के, तो उसको ले लेना. उसमें क्या एग्जांपल्स काफी रहते हैं, तो देख के आप समझ सकते हो. कोई भी टॉपिक जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा वीक है, या ये इंटीग्रेशन कैलकुलस वीक है, तो उसमें एग्जांपल्स काफी रहेंगे, तो उसे देख के समझ सकोगे, और आपको क्वेश्चंस भी काफी रहते हैं, सो गो थ्रू देम एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. यस सर. Thank you, Priyanshu. I hope your questions are answered. Great. So we'll just take one more person from the. I think so it's Mr. Piyush Kumar. I'll ask to unmute Mr. Piyush. आप अपना question पूछ सकते हैं. Hello, sir. Hi, Piyush. Sir, is preparing for JEE mains is enough to crack ND examination? Though ये question मैं answer कर दूं? Is it Yes, sir. okay? Considering Yes, my sir. father was in army, so he was a major, so I will be a better person to really answer this for you. NDA में English काफी हद तक predominant करती है, और JEE main की preparation से बहुत बहुत कम level पे आप NDA का maths का paper या aptitude का paper solve कर सकते हो. So इतना ज्यादा डिटेल में, मतलब वहां पे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कुछ नहीं पूछा जाता. सो एनडीए के लिए दोनों बहुत अलग स्ट्रीम्स हैं. पहली बात तो ये, वन इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. बट यस, अगर आप मैथ्स के पर्सपेक्टिव पे, एप्टीट्यूड के पर्सपेक्टिव पे बात करोगे, सो एनडीए के पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी. Thank you, sir. So coming back to again the sheet, मेरे हिसाब से we have a lot of questions. So there's a Mr. Harshit Sharma. Is the rank can only be procured under top batches, or medium can also put out toppers? So that's a standard question. Do you think only the top batches can procure batches, procure top ranks, or the medium also can achieve in the toppers list? Samarth? I am not of that thought that only toppers can bring a good rank, or like a top batch student can only bring a good rank. And a good rank's definition varies from person to person. For me, it was like top 500 is a good rank. For someone, it might be like top 50 is a good rank. For someone else, it might be top 1000 is a good rank. And batch, going by batch wise, it's just to help you. They differentiate you so that your performance is not affected. If you are with students who are doing far better than you, then you will feel low and you won't perform well. तुम कोई भी बैच में हो, तुम हार्ड वर्क करोगे, कंसिस्टेंट रहोगे एंड फोकस रहोगे, एक टारगेट सेट करो अपने लिए, सो यू कैन अचीव दैट. ऐसा नहीं है कि बैच मैटर करता है इतना.
बस ये कि हार्ड वर्क रहना चाहिए। आई हैव सीन दैट, मतलब मेरा एक फ्रेंड था, जब वो रेजिडेंस ज्वाइन किया, ही वाज इन A8, बाय द एंड ऑफ 12th ही वाज इन A1, एंड काफी अच्छा परफॉर्म किया उसने जेई मेंस जेई एडवांस में। मेंस में तो उसका 12,000 कुछ रैंक था, पर जेई एडवांस तक वो 4,000 तक पहुंच गया था। सो इससे पता चलता है बैच मैटर बहुत नहीं करता है, हार्डवर्क और फोकस कितना तुम्हारा वो मैटर करेगा। That's a good answer, Samarth. That's really a good answer because I also feel कि बैच से ज्यादा, so if I was given कि intelligence important है या hard work important है for IIT, I would say hard work बहुत ज्यादा जरूरी है because there's a lot. It's like 2 साल बहुत मेहनत करनी पड़ती है. So I would agree. बिल्कुल बैचेस से ज्यादा ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने आप को देखें, आप अपने आप को असेस करें कि आप टॉप 1000 में हैं, टॉप 500 में हैं, और उसके हिसाब से फिर आगे काम करें। हार्ड वर्क इज द की। सो इंटेलिजेंस हो सकता है ग्रो भी हो जाए। इनफैक्ट समर्थ कैन आल्सो शेड सम लाइट बिकॉज he has progressed through all those ranks all together. वो बताया नहीं Yeah, समर्थ ने। मतलब I was never a topper in my batch till the end of my preparation also, till the last year of preparation also, I was not in the topper of my batch. I was nowhere near. Like ऐसा हुआ था कि मेरे को, like I was told that I would be removed from my batch due to my poor performance in class 11. So all matters is your hard work and your dedication. You have to take inspiration from your peer group only, and you have to stay motivated internally. ये सब टॉक शोज किसी और का मोटिवेशन इतना काम नहीं आएगा जितना तुम खुद का सोचोगे। आई नेवर न्यू टॉपर्स फ्रॉम आवर सीनियर्स। लाइक मेरे बैच में बच्चे बोलते थे कि ये देखो मैंने इसका AIR इतना है, पवन गोयल इतना है। मैं जब कोटा गया तब मेरे को पता चला अच्छा इसका इतना रैंक है, एंड आई नेवर यूज्ड टू रिमेंबर द नेम्स और द रैंक। सो वो सब मैटर नहीं करता, तुम्हारा अंदर यू शुड बी सेल्फ ड्रिवन, एंड मेहनत करोगे खुद, एंड डोंट सेट अनरियलिस्टिक टारगेट्स। छोटा छोटा स्टेप्स लो। if you are like in you are scoring a rank of 200 or 300, and you say that I want to get in top 10 in the next test, so वो तुम अचीव नहीं कर पाओगे जितना भी कर लो। तुम बहुत इंप्रूव कर लोगे पर तब भी टॉप 10 में नहीं आ पाओगे, एंड तुम फिर मतलब तुमको लगेगा कि तुमने कुछ अचीव नहीं किया। अगर तुम छोटा छोटा स्टेप्स लोगे तो तुम यू विल फील हैप्पी दैट यू अचीव योर टारगेट, and that will be a motivation for you to improve more hard and improve that. So that I would suggest. That's a very very good answer. बहुत बिल्कुल दिल से आंसर लगा मुझे तो, और ये सच भी है बिल्कुल समर्थ का। So you know, special claps for him. In fact आ भी रहे थे claps. So really good answer, I would say. Really good answer. और बहुत ऑनेस्ट ओपिनियन दिया है समर्थ ने कि ऐसा है, सच्चाई है। दिस इज रियलिटी। नॉट एवरीबडी कैन बी टॉप 10 बिकॉज सिर्फ 10 ही हो सकते हैं उसमें। रियलिटी यही है। वेरी नाइस। ओके, सो नाउ गोइंग बैक टू our list, we have it's Palak Bisht. So I'm not adding Mr. or Mrs. I think so it can be a girl also. So Palak Bisht, what was your daily schedule for studying? And that would be for Aryan. हमारा disciplined child है वो। Aryan. I guess pre-lockdown तो मैं जब सिलेबस चल रहा था मेरा थ्रू आउट 11th एंड 12th, तो मेरी सुबह सुबह क्लास होती थी यूजुअली, मतलब 9 to 12 के बीच में होती थी। देन मैं रेजोनेंस में ही स्टे करता था, एंड आई यूज्ड टू स्टडी फ्रॉम अराउंड 3 to 7, एंड देन फिर मैं घर जाता था, एंड घर जाके और 1-2 घंटे पढ़ाई। राइट, ये लगभग 2 साल ऐसे ही चला था। देन जब सिलेबस कंप्लीट हो गया जेई मेंस के टाइम पे पहले, और या जेई मेंस के बाद जब कंप्लीट मतलब क्लासेस नहीं लगती थी हमारी, देन आई वुड स्टडी अराउंड 3 hours in the morning and 4 hours in the evening and night. ओके, इसमें मेन फोकस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना ही होता था और रिवीजन करना होता था। एंड ड्यूरिंग द लॉकडाउन मेरा स्टडी पैटर्न काफ़ी एरेटिक था। मतलब मैं ऐसे 4-5 बजे सोता था रात को, एंड फिर सुबह तो क्या ही, दिन में ऐसे 12 बजे उठता था।
and I used to study in the evening and mainly at the night for around let's say 7 8 hours whatever, and यही मतलब जेई तक यही था like, yeah. So I hope you have your answer. That's a good answer. So I remember I was talking to one of the students कि यार बड़ा लेट उठते हो तुम. So बहुत सर मैं रात को बहुत लेट तक पढ़ता हूँ. तो जब मैंने कहा ना कि बहुत लेट तक उठते हो, तो जवाब बहुत अच्छा आया था एक स्टूडेंट से कि सर मैं तो जल्दी उठता हूँ. मैंने कहा यार 12 बजे उठते हो, कैसे जल्दी उठते हो? कहते सर मैं इंडिया के हिसाब से टाइम जोन के हिसाब से उठता नहीं हूँ ना, मैं किसी और कंट्री के टाइम जोन के हिसाब से तो जल्दी उठ रहा हूँ, तो मैं तो सर वैसे ही जीता हूँ. अच्छा ठीक है, चलो that's a rational answer, but ठीक है. Timetable is a very personal thing, like हाँ, it is a very personal, बिल्कुल, totally agree. And like it doesn't matter if you're studying 6 hours or 8 hours, but आपका ऐसे दिमाग सबसे ज्यादा चलना चाहिए आप जब भी पढ़ रहे हो, and whatever time suits you well. Like ऐसे कोई पॉइंट नहीं है सुबह 5 बजे उठ के ऐसे नींद में ऐसे केमिस्ट्री रखने का. like उससे अच्छा ऐसे ढंग से जब प्रॉपर्ली अवेक हो शाम को पढ़ो. I know. लेकिन केवीपीवाई के इंटरव्यू क्लासेस ज्यादा इंटरेस्टिंग होती होगी नहीं? Yeah. वो तो अरे बाप रे. That was fun. वो वाला अलग एक्सपीरियंस था वो. हाँ, वो एक उसके बारे में एंड में बात करेंगे. आई थिंक सो क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लोगों के हाथ बहुत हो रहे हैं. सो लेट्स सी. हाँ, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस रेलेवेंट टाइम में, एंड आई वांट यू बोथ टू आंसर दिस बिकॉज यू हैव बीन इन दैट जोन जब कोविड आ गया था. सो द क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर सुशांत राज. How to be more focused in these tough times, or how to recover the damage in studies caused by COVID? Because you have been part of that time zone कि यार online ही पढ़ना पड़ेगा. You are not able to come to institute, or self discipline लाना पड़ेगा, क्योंकि वरना you can really undo the good that you have done. So I really would request, this is a very important question because times अभी खत्म नहीं हुए हैं, and जनरली स्टूडेंट्स का फीडबैक हमारे पास जो आता है उसमें लिटरली दे आर सजेस्टिंग सर वी लिटरली फील रियली बैड बिकॉज हमारा 11th उस लेवल का हुआ ही नहीं है. एंड फैक्ट है बिकॉज 11th बेस बनाता है, 11th इम्पोर्टेंट है. बट देन आई वुड हैंड इट ओवर टू Aryan and Samarth as to how they have coped up with this, how they have maintained that discipline. So over to you, Aryan. लाइक लेट्स से आपकी 11th हो गई अभी, एंड आपकी 11th इतने अच्छे से नहीं हो पाई जितना आपने सोचा था, और कुछ चैप्टर्स बाकी हैं, या जो चैप्टर्स करे भी हैं उसमें थोड़ी कम प्रैक्टिस हुई है, या कुछ पार्ट्स नहीं किए, एंड यू आर स्टार्टिंग आउट 12th, राइट? सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि लाइक जैसे मैं भी कोविड वाले टाइम में पार्ट ही था, राइट? फ्रॉम अराउंड मार्च टू जब भी जेई हुआ था सितंबर तक, राइट? सो इवन मतलब कोविड एक्चुअली क्या आप कोटा में होते हो या आप अपने एक मतलब बच्चों के साथ रहते हो, एक लाइव क्लास में होते हो, सो इट्स रिलेटिवली इजियर टू कीप अप योर पेस, कि आप कैसे वो आपको कंटिन्यूसली होमवर्क देते जा रहे हैं एंड आप करते जा रहे हो, और फिर होमवर्क चेक भी हो रहा है, डिस्कस भी हो रहा है, तो थोड़ा पुश भी आता है कि होमवर्क करना भी है. अब क्या कोविड में क्या होता है कि अच्छा वो तो क्लास करो नहीं करो, क्लास के बीच में सो जाओ, किसी को पता नहीं चल रहा, होमवर्क कर रहे हो या नहीं वो भी पता नहीं चल रहा. तो अ लॉट ऑफ किड्स, लाइक कुछ बच्चे करते हैं बट अ लॉट ऑफ किड्स लाइक इंक्लूडिंग माई सेल्फ, है ना, ये होमवर्क नहीं करते थे. बट व्हाट यू नीड टू थिंक इज दैट कि मतलब देयर इज अ पॉइंट देयर गिविंग यू होमवर्क, राइट? ऐसे आपका मतलब जो टीचर्स हैं भला ही चाहते हैं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि वो बस आपको पनिश करना चाहते हैं, आई मीन, राइट? एंड मतलब डेफिनेटली, एंड द अदर ग्रेट थिंग अबाउट कोविड इज कि सबको अपनी लाइफ में अभी ना बहुत सारा टाइम मिल चुका है. अब आई मीन पहले क्या कि हॉस्टल में रहते थे तो खेलना, ये अभी आजकल तो थोड़ा कम ही होता है ये सब, right? So rather than watching a TV show or something,
I would suggest you divert that time to studies and अच्छे से प्लान बनाओ, है ना? ऐसा नहीं कि बस ऐसे अच्छा ये चैप्टर लेके बैठते हैं ये कर लेंगे, राइट? अच्छे से प्लान बनाओ कब तक क्या करना है, एंड डिपेंडिंग ऑन व्हाट चैप्टर्स यू मिस्ड, कि जो मैंने पहले भी बताया था कि मान लो एक ऐसा चैप्टर मिस किया है जो आगे काम आता है तो उसे सबसे पहले करो, देन फोकस ऑन द स्टडीज दैट आर गोइंग ऑन, एंड देन फोकस ऑन द चैप्टर्स जो बाद मतलब काम नहीं आते, लाइक मतलब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं, राइट? सो एंड समर तुझे भी कुछ ऐड करना है? लाइक ऑनलाइन तो काफ़ी इफेक्ट होता ही है। जब हम लोग का ट्रांजिशन हुआ था फ्रॉम ऑफलाइन टू ऑनलाइन, हम लोग कोटा से अपने होम टाउन आ गए थे, तो काफ़ी डिस्टर्ब हम लोग के लिए भी हुआ था एंड काफ़ी इफेक्ट होता है परफॉर्मेंस। बट क्या है कि यू हैव टू टेक मोटिवेशन फ्रॉम यू ओनली, जिसका अभी जी 2021 है टारगेट। अब तुम लोग पास टाइम है भी नहीं भी है। इफ़ यू हैव डन योर कोर्स वेरी वेल, तुम काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, तो तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है। बट अगर तुमने नहीं किया है अच्छे से, तो तुम्हारे पास टाइम कम है। तो अब ऐसा है कि तुम्हारा जो टॉपिक वीक है, अब या तो तुम खुद इसको स्ट्रॉन्ग कर लो। यूट्यूब है तुम्हारे पास, यूट्यूब इज़ अ गुड सोर्स, काफ़ी इंटरेक्टिव होता है, काफ़ी मज़ेदार होता है। तो उससे कोशिश करो कि उससे क्लियर कर लो अपने डाउट्स, और प्रैक्टिस करो। अब ऑनलाइन टेस्ट दो, जितने पेपर्स कर सकते हो, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो, दैट ओनली कैन हेल्प यू। एंड पढ़ाई, आर्यन ने बोला पढ़ाई करो, हम आई एग्री विथ हिम कम्प्लीटली, बट थोड़ा सा रिलैक्स कर लेना, थोड़ा सा, मतलब डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। लाइक मैं क्या करता था, मैं अपना बता रहा हूँ पर्सनल एकदम। जैसे आई यूज टू वॉच टीवी शोज, वेब सीरीज, थोड़ा थोड़ा देखता था, पर देखता था। लाइक वीक में 2-3 घंटा वेब शोज देख लिया। कि जैसे आज अगर अनाउंस हुआ कि जेई मेंस पोस्टपोन हो गया, तो आई यूज टू वॉच द कंप्लीट डे मूवीज। मैं बोला हो गया, आज और नहीं पढ़ना है, एकदम रिलैक्स। सो यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट पढ़ाई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। पढ़ाई करो और साथ में रिलैक्स करो, दैट आई वांट टू से। Thanks, Samar. Arun and Samar, मेरे पास एक question और था. What about the support that you got from Resonance during this time? That is something also very important, because इससे पता चलेगा कि how like you know the faculties, like your faculties, how they supported you in this tough time. That is something also very relevant, because you know doubts आते हैं, चीजें आती हैं, and something on those lines. लाइक हम लोग का मेजर चीज कंप्लीट हो चुका था जब तक, लाइक वी वर अबाउट टू गिव दी फाइनल एग्जाम्स। हम लोग मार्च में थे, 1 महीने बाद हम लोग एग्जाम्स कर देते। सो ऐसे हम लोग का बहुत चीज बचा नहीं था। सो ऑल वी हैव टू डू वाज सेल्फ स्टडी, एंड जो थोड़ा बहुत डाउट आता था, वी पीयर ग्रुप यूज्ड टू हेल्प अस, हमारे फ्रेंड्स यूज्ड टू हेल्प अस। तो हम लोग को इतना फैकल्टीज का हेल्प का जरूरत नहीं पड़ा हम लोग के टाइम में। एंड रेजिडेंट्स यूज्ड टू प्रोवाइड अस टेस्ट एंड प्रैक्टिस पेपर्स, दैट वाज सफिशिएंट। बट हम लोग और भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते थे। सो आप लोग के केस में आप लोग टीचर से हेल्प लीजिए एंड डू सेल्फ स्टडी। और टीचर से ज़्यादा हेल्प ना ऑनलाइन, या मेरे को लगता है कि लाइक यू आर स्टक इन सम क्वेश्चन, यू कैन जस्ट गूगल आउट। लाइक टीचर से तुम मैसेज करोगे, यू विल वेट फॉर देयर रिप्लाई। इट्स बेटर कि तुम खुद गूगल करो, खुद सर्च करो, तो तुम क्या उससे और 2-3 चीज सीखोगे। सो सेल्फ लर्निंग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो आई वुड सजेस्ट दैट हियर learning from friends and self learning is also important more than teachers help after completing the course. So the question also remains कि जैसे you were able to form a peer group because you know you had that some part of offline classes. Now जिसके जो खासकर एक उसका तो peer group ही नहीं है. Problem आज तो ये हो गई है कि peer group बस I mean, like those who joined in 11 उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम है। आर्यन कुछ बोल रहा है शायद. हमारे साथ भी कॉलेज में ही हो रहा है कि कभी मिले ही नहीं, अभी यहाँ पे भी एकदम peer group फॉर्म नहीं हो पा रहा है। I can understand. So one thing, you know, people would, sir मेरा तो preparation का 1 साल चला गया, वो सब इनका सोचो, इन दोनों का कॉलेज का एक साल चला गया. इनफैक्ट फर्स्ट ईयर इज बहुत अच्छा, सबसे अच्छा यही होता है, सबसे अच्छा ईयर होता है. एब्सोल्युटली, आई कैन वाउच फॉर इट. फर्स्ट ईयर में पता चलता है कि आप कितने पानी में हो. You really meet people who are really of your caliber, or
ऐसा लगता है अरे बाप रे, this is how people are, and that's very different. Because I have been through first year and second year and third year and fourth year. मेरे time पे कुछ नहीं था, but I really थोड़ा सा वो भी लगता है, this is not fair. What about the third semester, Samarthan Aryan? How is it going? और अभी वो भी ऐसा ही चल रहा है? अभी चालू होगा सर थर्ड सेमेस्टर अगस्त में, जुलाई में, एंड वो भी ऑनलाइन। नहीं होगा हाँ, नो चांसेस ऑफ ऑफलाइन राइट नाउ। Yeah. Imagine a person who actually has done his MTech in these 2 years. वो तो कभी कॉलेज गया ही नहीं होगा MTech कंप्लीट करके। No, MTech seats are there in college only. अच्छा, they are? Okay, I thought you know only some of them are, I think. मतलब okay. Those who are having project works and that. हाँ, प्रोजेक्ट वर्क वाले लोग हैं, लाइक वो भी लाइक मेरा मोटिवेशन ही था कॉलेज लाइफ। मेरे को पढ़ने का इतना इंटरेस्ट नहीं था कि मैं कॉलेज में आके पढ़ूंगा, 10 CPI लाना है, ये लाना वो लाना है। मेरा मेन मोटिवेशन था कि कॉलेज में जाएंगे, एंजॉय करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतना अच्छा है, क्लब्स इतना, पर ऑल आई एम मिसिंग दैट। Okay. I mean, अगर ग्रुप्स फॉर्म नहीं हुए, लाइक यू कैन ट्राई एंड मेक फ्रेंड्स। लाइक हम लोग भी अभी थोड़ा यही कर रहे हैं कि अच्छा आपके पास कुछ व्हाट्सएप ग्रुप तो क्रिएटेड होगा, तो एक मतलब उसमें से एक बंदे के पास जाओ और हाय भेज दो। आई मीन ऐसे ही ग्रुप, मतलब अभी दीज आर कोविड टाइम्स, आई मीन थोड़े ऐसे ही ग्रुप्स फॉर्म करने पड़ेंगे। बट आई एग्री विद समर्थ, आई मीन डेफिनेटली friends, learning from friends is a very important process for I mean not just for JEE, in education, right? Like definitely बहुत help करता है, like you get to see different viewpoints and आप कुछ ना कुछ सीखते ही हो दूसरे लोगों से जो आपके साथ हैं। Okay, so let's go to someone. Okay, we have J. Sriram Reddy. So I'm asking you to unmute and ask your question, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, Sriram. So my question is that what are the tips that you would give to JEE 2023 aspirants? 2023. Okay. Aryan, Samarth, you heard the answer. Samarth, you can answer it. Any 2023, like you are in class 10th, right? Yeah, seems like. So like when I was in class 10th, मैं JEE के लिए इतना फोकस नहीं था। I was like preparing for NTSC and like that exams. So they are a part of the process only for JEE, towards JEE. So like if you prepare for NTSC, you are automatically preparing for JEE. You go through the competition, you get to know where you stand and what you can achieve. So preparing for NTSC also helped me to prepare for JEE also. थोड़ा बहुत आप जैसे क्लास 10th का जो सिलेबस है उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ोगे NTSC के लिए, तो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे जो आप अपना CBSE के लिए नहीं करते हैं। तो NTSC के लिए प्रिपेयर करो, और अगर कोचिंग में हो तो कोचिंग वाले तो हेल्प कर ही रहे होंगे, कोचिंग का अच्छे से करो क्लासेस। मेन 11th से आता है, 10th में मेरे को माई पर्सनल ओपिनियन की 10th इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE. Aryan has gone through this through coaching. I was in part of coaching also in 10th. So Aryan can help you if you want to know that how we should study by remaining in coaching. I mean, but I would suggest that NTSC के लिए प्रिपेयर अच्छे से करें अभी। I mean इस एज पे, I mean especially even in 11th, है ना, मतलब एक एग्जाम फोकस ना ऐसे 12th या 12th में ही होना चाहिए। I mean पहले तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि एजुकेशन लेना है, लाइक अच्छे से चीजों को सीखना है, समझना है ना, और सिर्फ JEE के सिलेबस से बाउंड नहीं होना है, राइट? सो मतलब अभी 10th क्लास में तो ट्राई एंड स्टडी, लाइक इफ यू आर श्योर इफ यू वांट टू गो इनटू इंजीनियरिंग, just try and study maths and science, है ना, like I mean you can even give Olympiads in 10th, like there's this thing called RMO and pre-RMO in RMO, अभी तो आजकल pre-RMO होने लग गया। हाँ, there is NTSC, that's a good exam. Okay, तो उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो डेफिनेटली। एंड आई मीन इतना अभी से ना JEE के बारे में ज्यादा सोचने की जगह आप ऐसे पढ़ाई के बारे में सोच लो। मतलब JEE देखो यार 3 साल, मतलब बहुत, मतलब 2-3 साल बाद है, राइट? अभी से मतलब just focus on your education and focus on getting knowledge rather than getting exam focused and practicing JEE questions. आप rather ऐसे
मतलब कोई सी भी HC वर्मा को ऐसे ऐसे थोड़ा पढ़ के देख सकते हो. एंड ऑब्वियसली एज समर्थ सेड NTSE इज अ रियली ऐसे नाइस एंड मतलब नाइस टारगेट इन 10th क्लास. आई मीन मैंने भी किया था, आई थिंक समर्थ ने भी किया था. Yeah. And And focus right now on mental ability. ये बाद में भी काम आएगा. Mental ability is also good. खाली मैथ साइंस अभी मत करो. Don't restrict your domain. सोशल साइंस पढ़ो अच्छे से. मेंटल एबिलिटी I करो. mean, ये मजा सब आएगा इस सब में. subjects बाद में नहीं आने वाले लाइक हाँ, ये सोशल. सब में एक्सपीरियंस मिलेगा. मजा आएगा अभी. हाँ हाँ लाइक रादर अभी तो एजुकेशन पे ही फोकस करो रादर देन कि बस जेई करना है. लाइक हम लोग Right, you केवीपीआई wouldn't- के लिए भी प्रिपेयर किए थे ना 11th में. क्या? सो हम लोग केवीपीआई के लिए भी प्रिपेयर किए थे 11th हाँ, में. हाँ. सो वी स्टडीड बायो आल्सो. कुछ कुछ टॉपिक्स में मजा आता था. सारे में नहीं मजा आते थे, पर कुछ कुछ में मजा आता था. And you wouldn't believe कि IIT में आके भी बायो पढ़नी पड़ रही है. या वी आर लर्निंग बायो. एंड बहुत जन रैंट करते कि क्यों पढ़ा रहे बायो, क्यों पढ़ा रहे. आई फील इट इंटरेस्टिंग. मतलब काफी अच्छा चीज है. वी लर्न लॉट अबाउट कोविड जेनेटिक्स. सो अच्छा है. एंजॉय द प्रोसेस. I think so. Rightly said, Aaron and Samarth. In fact, let me share something very similar to Samarth. Till 10th also, मुझे भी मतलब literally IIT का नाम भी नहीं सुना था मैंने. And I remember first, in fact, 10th की science is relatively limited. The first time I heard scalar and vector, I really thought there are 2 new admissions in my class. And I really thought, wow यार कितना cool नाम रखा है scalar और vector. यार ऐसे नाम मेरे क्यों नहीं रखे. मतलब बाद में पता चला ये तो अरे बाप रे बाप ये तो कुछ और ही है. So that's true depiction of how science can be. हाँ, but I would say if any viewership is in below 10th standard or 10th standard, it's better to get an exposure of the science and the learnings that are there so that you can take an informed decision as to मुझे science लेनी भी है या नहीं लेनी. Because every stream in itself is wonderful. मतलब so right now ऐसा समर्थ और आर्यन ने कहा कि वो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आगे चल के इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है बाय द वे इलेक्टिव के पर्सपेक्टिव से. तो इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है मतलब. हाँ, that is more interesting than मतलब अच्छा है वो भी. You need to know that. हाँ, so again, but अभी जो करना है 11th और 12th में, what we need to do is very clear. We have to focus ourselves और माइंड मैप्स पे काम करना है कि how you will recall better. मस्ती भी करिए because ये टाइम भी दोबारा नहीं आएगा. So have fun. So I'll ask Mr. Kirti Dadich to. I'll just unmuting you, sir. Please question पूछिए अपना. Hello, sir. Hello. Hi, Kirti. Yeah, hi, Kirti. Sir, it's Miss Kirti Dadich. Oh, I'm so sorry. I really thought it was that Mr. So my apologies for that. So Miss Kirti Dadich, please आप अपना question पूछें. Sir, like in the previous question, you have said that in class 10th, you should not focus much on IIT. Like I have just entered in class 11th. So it's a lot of burden that, I have to do IIT, I have to study more. So how to keep up with that burden and be consistent with our work? Aryan. यार देखो ना, पढ़ाई को कभी बर्डन लेके नहीं करना चाहिए. मतलब अगर जैसे मान लो आपसे लाइक यू शुड ऑलवेज, अगर आपको लग रहा है थोड़ा ज्यादा प्रेशर आ रहा है, सो आई मीन लाइक यू कैन ऑलवेज लाइक कि चलो यू कैन ऑलवेज प्लान आउट एंड लीव समथिंग, राइट. कि मान लो आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा ही होमवर्क दे रहे हैं, राइट. सो यू कैन ऑब्वियसली फाइंड सम पार्ट. आई मीन जनरली कोचिंग वाले इतना होमवर्क देते नहीं है ना. वो ऐसे एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ होमवर्क ही देते हैं. But let's say they run, so you can try and cut some part out, right? But I mean, always have a positive attitude towards education, right? And पढ़ाई, because that really helps. Like अगर आप ऐसे 11th के starting में आप सोचोगे कि नहीं ऐसे थोड़ा burden carry on करना पड़ रहा है, कैसे वो करेंगे. देखो यार, अभी तो कुछ पढ़ाया भी नहीं होगा, like अभी 11th I mean just start हुआ होगा, right? So I mean, अगर burden लग रहा है, so you can talk to your teachers and mentors, right? And talk to your friends, like कि उनके लिए कैसे जा रहा है, वो क्या कर रहा है. But what I would suggest is कि try and keep an open mind about education. Like I know कि ऐसे अभी जो कोचिंग में, I mean जो भी स्कूल में, like वो एक prescribed syllabus में ऐसे चीजें पढ़ाते हैं, but
try to explore stuff beyond that. And like अगर वो भी सीख रहे हो तो एक अच्छे मतलब अच्छे मन के साथ सीखो, I would say कि ऐसे नहीं कि बर्डन लग रहा है. I mean अभी तो 11 स्टार्टिंग में तो बहुत ही कम ही होता है, I think. I mean और I mean डेफिनेटली 12th आते आते आपको थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोचना पड़ता है कि हाँ अभी जेई एग्जाम आ रही है, इतनी सारी प्रैक्टिस करनी है, कैसे करेंगे. सो डेफिनेटली बट दैट इज अ लॉन्ग टाइम अवे फॉर यू, राइट. सो अभी तो यार बस आई वुड सजेस्ट कि जस्ट चीज़ें सीखने पे फोकस करो, और मतलब जो प्रॉब्लम्स वगैरह हैं मतलब अच्छे से करो, और इतना बर्डन लेने की जरूरत ही नहीं है 11th क्लास में. तो मतलब मेरे हिसाब से आप ऐसे केईपीवाई करो, ओलंपियाड्स करो, है ना. अगर नहीं मन है तो नहीं मत भी करो ये सब, राइट. ऐसे मतलब थोड़ा आई मीन जस्ट एजुकेशन पे फोकस करो rather than जेई. So thanks, Aaron. I have just 2 cents for Kirti. Kirti, see, one thing is very important, that if you actually want to go to an IIT, you have to have that burden कि यार मुझे करना ही है. So if things are happening और अभी लग रहा है burden, what will happen is you will mature. और over a period of time, these things that are looking very difficult to you, और ऐसा लग रहा होगा ना कि burden काफी ज्यादा है, over a period of time you will become more matured and you will be able to take more burden, and this is what you will feel. This is what शुरुआत हमेशा थोड़ी सी टफ होती है. I personally have gone through this. So शुरू के 3 महीने मैकेनिक्स पढ़ के ऐसा लगा कि यार ये मैकेनिक्स होती क्यों है. होती तो बिल्कुल सिंपल है, बट I kind of learned how to study. मैं अक्सर ये चीज सेमिनार्स में भी बोलता हूँ कि how to study is more important than what to study, where to study. ये सब how to study is a very tricky art. और अभी आप कुछ पढ़ भी लोगे तो बाद में याद रहेगा कैसे, आपको वैसे सोचना है, बिकॉज रिविजन के टाइम पे भी कम से कम कनेक्टिविटी तो एस्टैब्लिश हो. बट बर्डन, इसको बर्डन, पहली बात तो बर्डन वर्ड ही गलत है. एब्सोल्युटली आर्यन ने सही कहा कि बर्डन तो सोचना ही नहीं है. बर्डन क्या होता है? बर्डन तो होता ही नहीं है. जस्ट एंजॉय द लर्निंग. सो ये एक एक्सपीरियंस है, ये टाइम दोबारा नहीं आएगा. देयर विल बी मल्टीपल थिंग्स यू वांट टू डू, बट let's come back to studying and learning, and that learning is fun वाला जो chapter होता है, तो just enjoy it, that you are learning something new, and that's what Aryan was also suggesting. So that's great. We have multiple people, so I'll just take one more and then we'll go to the next question from the sheet. Let's see. So we have Bhavesh. Bhavesh, I think so has already, I've asked you a question. So Bhavesh, I'll take someone else. Bhavesh, I've already asked you a question. So Aditya Debroy. Hello, sir. Okay, thank God I did not say Mr. again. Go ahead. I'm from Resonance, Hyderabad. Okay. How to study in class 11th and what books we need to follow for better conceptual understanding? In class 11th, you don't need a lot of reference book to clear your concepts. Class 11th syllabus is relatively easy than class 12, and class 11th you do your sheets, the material provided by your institute, and for physics you can follow H.C. Verma to conceptualize, and maths I didn't use any reference book in class 11th, and chemistry maybe also I didn't use. Narendra Vasti's good book for physical chemistry. You can do that, but try to make your concept strong in class 11 and practice your sheet thoroughly. Okay. And what must be our percentage in the class 11 so that we may have a chance to crack an IIT JEE Advanced? Percentage in class 11, you mean school exams or what? Like there is no percentage defined, right? I don't So to know get to an what you are, IIT, yeah, if you're even scoring like 35-40%, there is a good chance you actually can land up in IIT. I mean, especially JEE Advanced. That's how difficult the exam is, by the way. So I hope that answers your question. Yes, sir. Thank you, sir.
Thank you. Okay, so coming to the topic which KVPY preparation, so how to manage Olympiad and KVPY preparation with JEE. I would take a twist in this, so that it becomes more interactive. So I'll let Aryan and Samarth talk about their KVPY preparation, and they've already talked about Olympiad preparation, and then finally they can certainly share their experience of the KVPY sessions of interview, and how they were humiliated, if they were. I don't remember if they were humiliated or not. So over to you, Aryan first, and then Samarth. Okay, so for in KVPY there are two stages, right? There is the written test and there is the interview. So you have, I mean, I think 75% or 80% of the marks are based on the written test. So if you want to get a good rank, right, you have to score well in the written test. And coming on to the question on how to manage that with JEE, I mean, like the physics and chemistry, I mean, if you're doing JEE for class 11th, if you're doing JEE, focusing on JEE advanced in class 11th, so the physics should be pretty easy for you. Like the syllabus is the same. And in chemistry, all you have to do is organic chemistry. Like if you're in resonance, there is this chapter called Samarth, क्या नाम GUC reaction पढ़ाते थे ना? ABC of chemistry. Right. All basic concepts of OC. ऐसे कुछ I है. don't know ABC अगर book वो module होगा. Exist करता है, मतलब करता ही होगा. I think काफी अच्छा था. We got that. So you just remember all the क्या नाम है reactions. Right. So chemistry के लिए I mean बस extra चीज other than the things you're doing for JEE, ये organic chemistry थोड़ी पढ़नी पड़ती है. ABC like आप ना थोड़े reactions याद कर लो, and GOC भी पढ़ते ही हैं क्लास में, तो that is also नहीं 12th में होता है GOC शायद. 12th में आता है. GOC 1 और 2 तो 11th में किया था. GOC 1 और 2 11th में आता है. That's correct. KVPY के पहले ही हो गए थे. हाँ, ORM था 12th. हाँ, ORM था 12th में. So I mean chemistry के लिए भी बस थोड़ा सी extra input required है. And now comes maths. And maths में actually KVPY में थोड़े unconventional, थोड़े pre-RMO side questions आते हैं और थोड़े hard questions आते हैं, right? And geometry आती है, which is not really a part of JEE. मतलब थोड़े से related questions आते हैं, but ज़्यादा नहीं. And number theory भी आती है. So उसके लिए देखो, मतलब ऐसे कुछ theory पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी. Like just, I mean जो 10th class में भी geometry पढ़ी होगी, तो just try and do the past year papers of KVPY maths, right? And there is definitely biology, which is the subject that haunts us all, right? So definitely biology के लिए देखो यार, अगर तुम ये PCM में तीनों अच्छा स्कोर करोगे ना, तो बायो में ऐसे एक नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आने वाले. लाइक कुछ तो ऐसे 25 में से 5-10 कुछ तो मार्क्स ऐसे आ जाते हैं. लाइक हर क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, राइट? सो यू विल गेट अ गुड रैंक इन द प्रोसेस. एंड डेफिनेटली यू, अगर आप इफ यू वांट टू रियली स्कोर अ गुड रैंक, you can try reading NCERT 11th 12th biology. Yeah, we read that. Right. मतलब थोड़ा बहुत देखना, पूरा ऐसा नहीं कि पूरा अच्छे से पढ़े हैं. We went through that, just read that, ताकि कुछ आए तो याद आ जाए. Right. I mean जो 9th-10th में बायो पढ़ी थी, I mean बायो पे इतना ज्यादा स्ट्रेस मत करो मेरे हिसाब से. Like without bio also very good rank is possible. But maths अगर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, you have to do previous year papers. Previous year कर लोगे अच्छे से. I mean you can save your bio by doing maths. Like maths ना ऐसे काफी हार्ड आती है. हमारे साल भी आई थी आई थिंक काफी हार्ड, और लाइक हमारे एक साल पहले भी हार्ड थी. तुम्हारा तो काफी अच्छा रैंक आया था, तो मतलब तुम्हारा मैथ स्ट्रांग था, मैथ में इतना दिक्कत नहीं हुआ था. So and there is the interview right in KVPY. So हमारे लिए तो अर्जुन आगर सर ने सेशंस ऑर्गेनाइज कराए थे, एंड वो ऐसे हमें ऐसे इंटरव्यूज लेते थे हमारे, एंड काफी फन था. ऑल्दो आई डोंट नो कि तुम्हारे साल कैसे पॉसिबल होगा ये,
या कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, बट राइट इंटरव्यूज में भी ऐसे आई मीन वो आपको ऐसे इट इज नाइस टू बी कॉन्फिडेंट इन एन इंटरव्यू एंड लाइक डेफिनेटली ज्यादा थोड़ा चिल चिल मार के ही जाना चाहिए, ज्यादा स्ट्रेस आउट मत हो इंटरव्यू के लिए, लाइक दे नो यू आर अ 11th क्लास किड, राइट? Yeah, they will just ask you basic questions. बोर्ड में चौक दे देंगे, वहां पे 5-6 जन बैठेंगे पैनल में एंड दे विल आस्क सिंपल क्वेश्चंस. ये कि मजा आता है इंटरव्यू में. थोड़ा सा पैनिक क्रिएट होगा कि व्हाट दे विल आस्क, हम थोड़ा सा क्लियर रहेगा, मजा आता है सर. राइट, रियली नाइस थिंग. ऐसा मत करना कि छोड़ देना इंटरव्यू स्टेज टूटने की, टाइम वेस्ट होगा, ये होगा. इतने अर्ली एज पे पहली बार ऐसे इंटरव्यूज होते हैं. हाँ राइट, एंड डेफिनेटली देखो KPI का अभी कमिंग ऑन टू द रिजल्ट, राइट? लाइक अगर आपको IISc जाना है देन यू हैव टू गेट अ रैंक इन टॉप 100 और शायद अराउंड 200 के आसपास में शायद मिल जाता है. 200 पे भी हो जाता है. हाँ शायद 200 तक शायद, क्योंकि आई डिडंट गेट द ऑफर. मेरे को तो नहीं मिला था क्योंकि 220. Arun, what was your rank? You had a very good rank, right? In I KPI? got very good. कौन सी थी? 5. 5 थी. Okay, 5. Yeah, I remember 5 थी. राइट, सो आई मीन KPI के अगर रिजल्ट्स अच्छे भी नहीं आते तो ज्यादा स्ट्रेस आउट करने की जरूरत नहीं है. I mean, मतलब अगर आपको IISc जाना था देन ऑब्वियसली यू हैव आई मीन यू कैन गिव इट अगेन इन 12th. एंड अगर नहीं भी हुआ, देखो बायोलॉजी आती है, लाइक इट्स अंडरस्टैंडेबल, राइट? एंड कमिंग ऑन टू ओलंपियाड्स, सो आई मीन 3-4 मतलब 3 टाइप के मतलब 3-4 होते हैं, राइट? मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड एस्ट्रोनॉमी. Okay, so I wouldn't suggest doing math Olympiad like the RMO and NMO stage in 11th and 12th, क्योंकि वो थोड़ा काफी radically अलग syllabus होता है JEE से. Like they are very nice Olympiads, and if you want to do them you can, but JEE में I don't think इतना फायदा होगा. Although pre-RMO is really nice, and physics and chemistry Olympiad, if you haven't started in 11th till now, I would suggest wait till your syllabus completes, because आपको physics and chemistry Olympiads करने के लिए syllabus complete करना ही पड़ता है. मतलब even in 11th, I mean मैंने 11th में भी physics Olympiad दिया था तो syllabus complete करके ही दिया था. I mean ऐसे कुछ edge नहीं मिलता, like आप 12th में भी दे दो तो भी चलेगा. And 12th में चांसेस होता है क्लियर करने का, पर 11th में दे देना, पर ऐसा नहीं कि दो ना देना ही, I mean, दे देना मतलब या like, Okay, so let's go to Mr. Rahul Kumar. I believe this would be the last question for the day. It's already 12:03. हम 3 मिनट ओवरशूट कर चुके हैं, but just giving benefit of doubt. अच्छा, by the way, KVPY में मुझे कुछ मतलब इनके जो दोस्त लोग हैं उन्होंने पता है मुझे ये आगे फीडबैक दिया, सर आप जो इंटरव्यू लेते थे वो ज्यादा टफ लगते थे हमें, तो हे भगवान वो वाला इंटरव्यू आसान था इतने. yeah. चलो, so Rahul Kumar, I'm asking you to unmute. You can ask your question. गुड आफ्टरनून सर. हाय राहुल, बताइए. सर मेरा क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम से 15 दिन पहले से मतलब तैयारी किस तरह से किया जाए? एग्जाम से 15 डेज तो बहुत दूर है, उस समय तक तुम अपनी नॉर्मल प्रिपरेशन कर सकते हो. 2-3 दिन पहले तक स्लो डाउन योर मतलब इंटेंसिव वर्क. लास्ट डे एग्जाम के 1 दिन पहले तो एकदम रिलैक्स करना, और 2-3 दिन पहले ऐसा मत करना कि कोई बहुत टफ पेपर लेके बैठ गए एंड यू स्कोर्ड वेरी लो एंड यू विल फील वेरी डिमोरलाइज्ड. सो आखिरी के 2-3 दिन क्या करना कि इजी पेपर्स ही करना, ताकि मोरल बूस्ट रहे. यस यू कैन डू दैट, यू आर स्कोरिंग हाई, कर सकते हो. एंड पेपर्स ही सॉल्व करने अपन को तो 15 डेज लगेगी. और 2-3 दिन हफ्ता भर पहले का बस ध्यान रखना कि बहुत टफ पेपर्स मत कर लेना, एंड ये ध्यान रखना. समर, इसी कंटेक्स्ट में एक क्वेश्चन अक्सर आता भी है दैट हमें क्या 15 दिन पहले, 1 महीना पहले, 2 महीना पहले भी क्या नया टॉपिक लेना चाहिए जो पढ़ा नहीं था या कवर नहीं हुआ था या छूट गया था, तो उसको स्टार्ट करें. तो 15 दिन तो बहुत ही कम हो गया, बट हाँ 2 महीने तक में भी क्या स्टार्ट करना चाहिए या फिर नहीं, जितना हो गया है, लेट्स बी कंटेंट विद दैट. लाइक कोई टॉपिक हम लोग को तो नहीं छोड़ना चाहिए. मे बी क्या पता उससे बहुत इजी सवाल आ जाए, तो
इफ यू हैव बहुत टाइम है तुम्हारे पास, यू कैन गो थ्रू दैट एंड थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लो एंड बाकी सब भी प्रैक्टिस करते रहो। ऐसा नहीं कि खाली उसी को नया टॉपिक भी पढ़ रहे हो, एडिशनल टाइम उसके लिए निकालना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर शेड्यूल लाइक दैट कि to give time to both your for practicing your previous concept and for learning this new concept which you left but which is in the syllabus। सिलेबस के बाहर का अभी कुछ मत करना। सिलेबस का जो है, जो तुम्हारे पास शीट्स है वो सभी करना। अभी मतलब जो छूट चुका है उसको प्रैक्टिस कर लो थोड़ा बहुत एंड पेपर्स करते रहो। मेन क्या है, हफ्ते में जैसे लास्ट 2-3 महीने what I feel should be done is that neither you should keep on doing papers, neither you should only do revision, मतलब like reading notes. You have to do a mixture of both. Like I did 2 to 3 papers, मतलब each set was of 2 papers, morning 9 to 12 and 2 to 5 in the evening. So I used to practice 2 or 3 days of full J pattern, advanced pattern, and in the other days I used to just practice और रिवाइज नोट्स। टाइम बाउंड जो मैं टेस्ट देता था वो 2-3 दिन ही देता था हफ्ते में, ऐसे नहीं कि हर रोज देता था। दैट आई वुड सजेस्ट। Okay, great. So with this we are nearly ending or coming to an end. I know there are some more hands that are raised, but हम सबका वो नहीं कर पाएंगे वरना फिर हम लोग 1 और घंटा यहाँ बैठे रहेंगे। And it's a Sunday and I would want to give you back. It's already हम लोग मॉर्निंग से नून में आ चुके हैं और जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ और ज्यादा हैंड्स रेज होते जा रहे हैं, बट आई वुड स्टिल रिक्वेस्ट, आई अंडरस्टैंड we do have the Samarth and Aryan and you know it was a privilege having them always. We will continue this entire perspective with Meet the Toppers next week. 2 और स्टार्स जो हैं, जो कि इनके बहुत अच्छे दोस्त हैं दोनों के, Sankalp and Utkarsh will be coming. So stay tuned and hopefully we'll see you there. Hope you liked this entire thing and we'll be asking for your feedback also कि आपको कैसा लगा। We tried to make it very very cordial and simple for you all so that realistic scenarios में क्या सच्चाई है, how one should study, and this is how Resonance wants to bring this to you so that if we can really emphasize and you want to join Resonance even in the online course, आप कर सकें, जो भी करना चाहें कर सकें, and then wish the best for your future and आप अपने potential के साथ जी पाएं और justice कर पाएं even in these tough times where COVID is taking a call. So best of luck for if you're taking a journey of JEE or a NEET or any competitive exam. And as both Samarth and Aryan rightly said, I'll be handing it over to them for the last words for sure. But from my side, I would suggest, as both of them really pointed out, have fun at the same time, study and keep the essence of learning. So handing it over to Samarth first and then Aryan, and then I'll come back to me and then we'll close it off. Samarth, last words for... My last words will be stay cool, don't take stress, don't let the stress win over you. Like in the last day, in the D-Day, you have to completely relax and think that क्या होगा देखा जाएगा। Don't think of the consequences, देखा जाएगा, we will see क्या होगा। and एकदम भी टेंशन नहीं लेना क्योंकि फर्स्ट पेपर देने के बाद मोस्ट पीपल थिंक अब क्या होगा, बहुत टफ हुआ, बहुत खराब गया। हम लोग साथ भी ये हुआ था कि फिजिक्स काफी टफ आया था, बहुत क्वेश्चंस नहीं हो रहे थे। सो डोंट गेट स्टक ऑन द क्वेश्चन, कंटिन्यू आगे बढ़ते जाओ, कॉन्फिडेंस आता जाएगा। और सेकंड पेपर के लिए फर्स्ट पेपर के बारे में एकदम मत सोचना, खाना खाओ, रिलैक्स करो, वॉश योर फेस एंड डोंट लेट दिस स्ट्रेस विन ओवर यू। दैट्स ऑल आई वांट टू से। And one thing that I like about Resonance is my personal, I'm not promoting Resonance here, just what I felt in the journey is that Resonance में stress नहीं है। We didn't feel a lot of stress during COVID times also and before also. So that is what is important. है ना, correct, Aryan? Other institutes I don't want to name, क्या stress काफी रहता है कई कई जगह। सो स्ट्रेस रहेगा, दिक्कत होगा। बहुत जिन क्या होता है कि स्ट्रेस, अच्छा पढ़ने वाले बच्चे स्ट्रेस में आके खराब कर देते हैं। तो स्ट्रेस एकदम नहीं लेने का हम लोग को, जस्ट रिलैक्स, चिल एंड एंजॉय द जर्नी, दैट्स ऑल। Thanks Samarth. Over to you, Aryan.
I would suggest कि देखो क्या मतलब मेरी और I know a lot of my friends है ना कि क्या होती है लॉकडाउन में क्या ऐसे दोस्तों से बात नहीं करते और मतलब थोड़ी कम ही हो पाती है, थोड़ी मस्ती कम हो पाती है, तो आप क्या ऐसे you tend to overthink and overestimate the importance of results and मतलब पढ़ाई, right? So I would just मतलब देखो यार जेई रैंक है ये इतनी मतलब कॉलेज में आके ना इतनी मैटर नहीं करती मतलब सीरियसली नहीं करती, राइट? लाइक ये एक्चुअली क्या आपको आई मीन इट डजंट डिफाइन हु यू आर, राइट? आप मतलब द बेटर थिंग वुड बी लाइक जेई रैंक कुछ भी है, आप 11th एंड 12th में एक अच्छी एजुकेशन लो बिकॉज दैट रियली मैटर्स है ना, इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग अ गुड रैंक फिर कॉलेज आके कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे। ओके एंड सो आई वुड जस्ट मतलब अगेन सजेस्ट कि आप ना ऐसे बस थोड़ा एजुकेशन पे ही फोकस रखें rather than पूरी एग्जाम पे। एंड डेफिनेटली इफ यू आर गिविंग जेई इन 2021 अब तो एग्जाम फोकस्ड होना ही पड़ेगा थोड़ा, राइट? एंड तो थोड़ा चिल करो, रिवीजन करो है ना, और ज्यादा स्ट्रेस मत लो। देखो मतलब रिजल्ट कैसा भी आता है आगे यू विल डू समथिंग गुड फॉर श्योर। थैंक्स सर। एक चीज बस बोलना चाहूंगा जी 2021 वालों से, डोंट कट ऑफ फ्रॉम योर फ्रेंड्स। या ऐसा नहीं कि एग्जाम आ रहा है जस्ट गेट इनटू अ शेल एंड जस्ट डू स्टडी। थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ कांटेक्ट में रहो बिकॉज लर्निंग फ्रॉम पीयर ग्रुप अगेन कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन रहेगा तो सबको मजा आएगा एंड सब एक साथ अच्छे से कर पाओगे। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमता भी था उस समय, कोरोना के समय घूमता भी था। आई यूज्ड टू स्पेंड टाइम विद देम, सो बेटर है कि देख लेना जैसे भी तुमको सही लगे, पर फ्रेंड्स के साथ कट मत हो, मेंटल स्टेट ठीक रहेगा उससे। Definitely, sir. it's not Thank you. worth to cut away your family and friends for your personal. Yeah, family time is very important. Yes. So ये सब लोग अब दोनों की कटिंग्स दिखा सकते हैं पेरेंट्स को कि देखो आप हमें अपने फ्रेंड्स के साथ घूमना अलाउड करो, क्योंकि समर्थन नारायण ने भी ये बोला है एंड दैट्स राइटली सेड, दैट्स एक्चुअली ट्रू। डू नॉट गेट कट ऑफ बिकॉज वैसे ही कट ऑफ हो चुके हैं, वैसे ही अकेले हैं, फैमिली ही है। एट द सेम टाइम जो फ्रेंड्स हैं जिनको आप फ्रेंड्स बोलते हो किसी रीजन से बोलते होगे, सो दे नो यू पॉसिबली बेटर देन what your parents know because आप सेम तरीके से सोचते हो, सेम एज ग्रुप के हो। So have fun, stay cool, stay calm and wish the best for you. With this, I think so let's end this session. I again finally would want to thank Samarth and Aaron to take out time from their, I cannot call it busy schedule, online busy schedule for IIT. And good luck to both of them for their future. Anyway, we will stay connected for sure, and thank you all for staying till the end. It has been a long session, it's been 1 hour, so thank you all. Hope to meet you next week with Utkarsh and Sankalp. Thank you, have a good day. Bye bye. Thank you everyone.